Namaskar. Good morning to all and welcome to this unique awareness session on child adoption in India, issues, legal aspects and way forward during this pandemic, which is organized by Anandi Empower Foundation along with NCPCR, and Arise to Lead is proud to be knowledge partner here. I welcome you all for this session. I'll just quickly take you through this minute-to-minute program of this entire session. फिर बाद में we will start with the first speaker, Srimati Vijaya Rahatkar. She is the founder president of Anandi Empower Foundation. While taking names, I would request the distinguished speakers to show their videos so that everybody can get to see them. She is also the ex-chairperson of the Maharashtra State Commission for Women. Welcome, Vijaya Thai. The next would be Advocate Sejal Pawar. She is a legal consultant, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, New Delhi. She will speak on the legal aspects of adoption in India. Welcome, Sejal. Next speaker would be Advocate Victoria Gauri, Assistant Solicitor General of India, Honorable High Court of Madras at Chennai. Welcome, ma'am. She will talk on the suggestions with respect to the adoption process in India. Then we will be having a session by Shri Vijay Doifode, Chairperson Child Welfare Committee, Mumbai City. He will talk on the procedures followed by the CWC in declaring the child legally free for adoption. Welcome, sir. Then the next speaker would be Ms. R.H. Lata. She is an ex-member of the Madhya Pradesh State Commission for Protection of Child Rights. Namaste, ma'am. Welcome. Finally, we will have Shri Priyank Kanungo, who is an Honorable Chairperson of the National Commission for Protection of Child Rights, Government of India. Welcome, sir. He will consolidate the discussion of whole event along with highlighting the important circulars of the MWCD regarding adoption. So this will be our end-to-end program. I hope this is clear, and we will start with the session. I would request Srimati Vijaya Rahatkar to have an introductory session. Thank you. सभी को नमस्कार। एनसीपीसीआर और उसी के साथ साथ आनंदी एम्पावर फाउंडेशन की तरफ से जो यहाँ पर सेमिनार हो रहा है, इसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एनसीपीसीआर के अध्यक्ष आदरणीय प्रियांक कानूनगो भी आज हमारे बीच में उपस्थित है और आज उनके उपस्थिति में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने किया है। प्रियांक जी, आपका मैं आनंदी एम्पावर फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उसी के साथ साथ हमारे सभी स्पीकर्स और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। आनंदी एम्पावर फाउंडेशन, ये जो फाउंडेशन है, ये महिला और बाल विकास के लिए काम करती है। महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, उसी के साथ साथ डिफरेंट कानून में काम करना, कानून में जो भी आज के समय पे जो आवश्यकता है उसमें थोड़ा सा संशोधन करना, सरकार को सुझाव देना और प्रत्यक्ष रूप में उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो, इसके लिए कोशिश करना, इस तरह का काम आनंदी एम्पावर फाउंडेशन करती है। इस पैंडेमिक के समय पे हमने अनेक सैकड़ों महिलाओं को रोजगार भी दिया है और उसी के साथ साथ मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारा जो केंद्र का गृह मंत्रालय है, उनके साथ साथ भी हमने अनेक कार्यक्रम किए हैं और महिलाओं के सुरक्षा के लेकर हमने अनेक प्रोग्राम करते हुए उनके साथ साथ अनेक सुझाव भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को हमने दिए हैं, जिसको आज गृह मंत्रालय ने स्वीकारा है और अनेक निर्णय भी उसके साथ किए गए हैं। अभी दिल्ली में हमने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी आए थे और काफी अच्छी कोशिशें उसमें की गई थी। अब ऐसा बहुत लग रहा है कि ये पैंडेमिक जो आया है, ये हम सबको बहुत तकलीफ भी दे रहा है। आज इसकी वजह से अनेक घर उजड़ रहे हैं और कितने ही अनेक बच्चों को अनाथ भी कर दिए गए हैं। पैंडेमिक की वजह से
आज बच्चों की सुरक्षा ये सबसे बड़ी बात है, उनका एजुकेशन सबसे बड़ी बात है, फिर उसी के साथ साथ हमारे बच्चे सेफ है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस समय पे हम देख रहे हैं कि अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ एडवर्टाइज आ रही है, कहीं कहीं अनेक संदेश आ रहे हैं कि जिन बच्चों ने इस पैंडेमिक के समय पे कोविड के कारण अपने माता पिताओं का छत्र गंवाया है, ऐसे बच्चों को हम गोद देना चाहते हैं और कृपया इसके लिए आप संपर्क करिए। ऐसे अनेक मैसेजेस हमने देखे और इसका तुरंत कॉग्निजेंस हमारी केंद्रीय बाल विकास मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने तुरंत लिया और उन्होंने कहा कि इस तरह का काम करना बहुत गलत हो जाएगा। हमारे देश में कानून का ही राज है और कानून के साथ ही हमने चलना चाहिए। बच्चों का एडॉप्शन करने के लिए तरीका है, उस तरीके के साथ ही आपने जाना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने अनेक रास्ते बताए कि किस तरह से बच्चों का एडॉप्शन होता है। हमारे देश में ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर कारा के साथ आप जाकर एडॉप्शन आप कर सकते हैं, चाइल्ड लाइन के साथ आप संपर्क कर सकते हैं, वहां की लोकल जो पुलिस है उनके साथ आप संपर्क कर सकते हैं, या जो CWG है उनके साथ भी आप संपर्क करके आप आगे की कार्रवाई पूरी कर सकते हैं। पर अगर इस तरह की हरकतें होती है या इस तरह की बात होती है तो ये भी डर लगता है कि बच्चों का ट्रैफिकिंग भी हो सकता है, इसमें से कुछ गलत असामाजिक तत्व भी सामने आ सकते हैं। ऐसे आज कोविड के समय पे अनेक चैलेंजेस हमारे सामने है और आज इसी चैलेंजेस को हमने कैसे मुकाबला करना है, हमारे जो बच्चे हैं उस बच्चों का संरक्षण हम किस तरह से करना है, इसी विषय पे विचार मंथन करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी की बात लगती है, बहुत अच्छी बात लगती है कि हमारे NCPCR के अध्यक्ष इस विषय में बहुत अग्रसर है। जब ये चीजें ध्यान में आई और केंद्र ने इसकी कुछ गाइडलाइंस जारी करी तो तुरंत NCPCR ने भी उसका कॉग्निजेंस लिया। तुरंत NCPCR ने सभी स्टेट के कमीशंस, उसी के साथ साथ विभाग जो है महिला बाल विकास विभाग और काम करने वाले सभी जो एजेंसीज है उनके साथ उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने भी आह्वान किया है कि इस तरह का काम हमें करके नहीं चलेगा, हमें कानूनों का पालन करते हुए ही हमें आगे बढ़ना होगा, ये भी उन्होंने कहा है। ऐसे अनेक विषय पर आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। मैं आज के हमारे स्पीकर और उसी के साथ साथ जिनका आज का इस कार्यक्रम करने में बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे NCPCR के अध्यक्ष आदरणीय प्रियांक जी का बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि उनके तरफ से हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी मिलेगा। इसके अलावा हमारे और भी स्पीकर्स यहाँ पे मौजूद है, मैं उन स्पीकर्स का भी सभी का, विक्टोरिया गौरी जी है, RH लता है, विजय जी है, इसी के साथ साथ हमारी सेजल है, ऐसे अनेक यहाँ पे स्पीकर्स है, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज के इस विषय में हमें अनेक चीजें समझ में भी आएगी और उसी को लेकर हम आगे चलेंगे, हमारे बच्चों का संरक्षण करेंगे और सुरक्षित तरीके से बच्चों का एडॉप्शन भी करेंगे। आप सभी लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रणव जी को आगे की कार्यवाही करने के लिए आग्रह करती हूँ। धन्यवाद विजयाताई। I would request Advocate Sejal Pawar to share with us the legal aspect of the adoption in India. धन्यवाद। Good morning all. पहले तो thank you for giving me this opportunity to speak to you all about the legal aspects of child adoption in India. Namaste Priyank Kanungo ji, Radkar Madam ji, and all other speakers here present with us today. I am Sejal. I am an advocate working with the Ministry of Social Justice, Government of India. The topic for today is child adoption. The need for it is because I have been receiving calls, and I'm sure many of you must be receiving calls from many people regarding adoption processes or adoption of orphan children in our country. तो ये क्या है? Why are we getting calls? Why are normal people getting calls about the adoptions? And why are we not aware about this? कि ये सब ऐसे calls आना, like orphan बच्चों के लिए calls आना या फिर abandoned बच्चों के लिए calls आना, एक normal इंसान के लिए, इंसान को call आना, it's a very different thing, and it could also lead to trafficking in the future process. So we should be aware about adoption related processes because it is a punishable offense to share something which is not
which is a problem in the society, which has to be done by the government authorities. Taking such things in our hand and sharing all such things on social media websites is a punishable offense. And that is the reason why we are here today to talk to you about what exactly adoption is. In my topic today, I am going to cover what is adoption, who can adopt, what are the personal laws, and what are the laws related to adoption in our country. So because in our country we have different laws, so adoption ke liye bhi alag laws for every religion, alag laws banaye gaye hain. So first we start with adoption. So basically, adoption is a process by which people take a child not born to them and raise the child as a member of their own family. So it has been defined under the adoption. Adoption has been defined under the Hindu Adoption and Maintenance Act, and it has been also defined in the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act of 2015. So the next question that arises in our mind is, who can adopt? As a person, who can adopt a child? So every citizen in our country can adopt a child, but that is subject to personal laws. So what are these personal laws? Personal laws are something which regulate the marriage, divorce, maintenance, adoption, and succession related procedures in our country. So for Hindus, we have a different set of personal laws in our country, and for Muslims, Christians, Jews, we have different set of personal laws in our country. So in this way, the adoption is regulated by each of their personal laws. So just an overview, what are the laws related to adoption? One is the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, which applies to Hindus, Buddhists, Jains, and Sikhs. And it has enumerated valid adoption and procedure for Hindus. Apart from that, there's a secular act in our country, because there are questions which arises, फिर Muslim लोग कहाँ से adopt करेंगे, Christians कहाँ से adopt करेंगे, Jews कहाँ से adopt करेंगे. So for them, we have a Juvenile Justice Protection of Children Act of 2015, which applies to all religions. So even if you are adopting from a Hindu Adoption and Maintenance Act, you can still adopt. Even if you are a Hindu, you can still adopt in a Juvenile Justice Act के तहत भी आप अडॉप्ट कर सकते हो. So this is a secular act which has entrusted all the authority and power to CARA, which is the Central Adoption Resource Authority. Next is the history of adoption in India. When we talk about history of adoption, India has personal laws with respect to marriage, divorce, adoption, maintenance, and succession, as I've already said. And Hindus ke liye we have the Hindu Adoption and Maintenance Act. But earlier we did not have the Juvenile Justice Act 2015. So what were we? Which act were we taking into consideration for adoption-related matters? During this time, we used to take into consideration the Guardianship and Wards Act of 1890. Now, this Guardianship and Ward Act does not provide for adoption. In this case, it is just a relation between the guardian and the ward. In these cases, guardian has no control over the ward, and the act is silent on the adoption and orphan. So there was a need to have some adoption procedure in place, or some authority in place which would guide the adoption in our country. Because there were so many laws and so many different religions, there was not a proper firm point where we could adopt and we could say that कि ये authority है, यहाँ पे adopt होनी चाहिए. There were also several petitions filed in the Honorable Supreme Court of India stating that कोई तो एक authority होनी चाहिए who would take care of adoption in our country, because that further leads to trafficking and any other menace that would take place. So after a series of amendments, Juvenile Justice Protection of Children Act 2015 was passed, which has provisions of adoptions. This act recognizes the child in need of care and protection in conflict with law. So we'll go into this law as well, but first we'll try to understand what exactly is a valid adoption in the Hindu Adoption and Maintenance Act, which is applicable for Hindus in our country. So Hindu Adoption and Maintenance Act, as I said earlier, it applies to Hindus, Jains, Buddhists, and Sikhs. In this case, a Hindu parent or guardian can give a child in adoption to a Hindu parent. Okay, there are certain prerequisites of valid adoption. मतलब जो इंसान को कैपेसिटी होना चाहिए अडॉप्ट करने के लिए, जिस इंसान अडॉप्शन के लिए ले रहा है, he should have the capacity to give in adoption. जो इंसान अडॉप्शन के लिए दे रहा है, जो इंसान अडॉप्शन में ले रहा है, the person adopted is capable of being taken into adoption, and this all process has to be made in compliance with other conditions as well. Now this next question arises in our mind. In Hindu Adoption and Maintenance Act, who can adopt? So who can adopt? A Hindu male who is major यानी 18 साल की उम्र कंप्लीट किया हो, who is of sound mind, and consent of the wife is necessary. Similarly, Hindu female who is a major, who is of sound merit,
sound mind and who is unmarried can adopt a child in this Hindu Adoption and Maintenance Act. Then whom can they adopt? One, they can adopt the child that can be adopted must be a Hindu only. So under Hindu Adoption and Maintenance Act, which we will call as HAMA now, under HAMA, the child adopted must be a Hindu. That child which we are going to adopt, that should not have been already adopted. Okay. Then the child that we are adopting should be below the age of 15 years. 15 साल की उम्र 15 साल कंप्लीट नहीं होने चाहिए. He or she should be below the age of 15 years. Now, next question that arises is who can give in adoption? So, only mother, father of the child can give in adoption. A guardian, if mother and father of the child are not there, then a guardian who has been declared as a guardian by the competent authority can only give the child in adoption. So, this is the valid requisites in the Hindu Adoption and Maintenance Act. Apart from that, there are other conditions for valid adoption as well. So when we are adopting a child under the Hindu Adoption and Maintenance Act, parents who already have a male child can only adopt a female child. They cannot adopt a male child again. Parents who are having a female child, they can only adopt a male child and vice versa. So parents who are adopting a female. So this is a very important point in the Hindu Adoption and Maintenance Act, which states that अगर किसी parent को एक बच्चा गोद लेना है, that बच्चा is a female, तो the prospective adoptive parents, जो adoptive parent है, उन parent में, like the father of the child and the child, उनका difference should be like 21 years. It should not be less than 21 years. If they are adopting a female, the difference between the father and the female that is to be adopted, the difference must be 21 years. Whereas the parents who are adopting a male child, so the adoptive mother she should be 21 years older than the male child that has been adopted. Same child cannot be adopted by 2 or more parents. And valid adoption has been done by the adoption deed. It cannot be cancelled. Adoption in this case is devoid of any payments. There are no payments involved in the Hindu Adoption and Maintenance Act. So all these procedures, like who can adopt, whom can adopt, when can you adopt, these all things are given in the Hindu Adoption and Maintenance Act. Now, the other question which arises is how can others also adopt a child? As per which act, under what provisions, under which authority can other persons adopt a child? So for that, we have the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. This act has been passed in 2015. It has been passed for the care and protection of children. So there are two types of children which are recognized by the Juvenile Justice Act. One, the children in conflict with law, and two, the children in need of care and protection. So children in need of care and protection are the children who are to be adopted and who we given for adoption. This act controls this aspect of care and protection. This is a secular act, so under which a couple or a single parent can adopt three types of children. One is an orphan child, second is an abandoned child, third is a surrendered child. The Juvenile Justice Act के तहत when we say कि आपको adopt करना है under Juvenile Justice Act, there are three types of children that can be adopted under the Juvenile Justice Act: orphan child, surrendered child, and abandoned child. So what is an orphan child? Orphan child वो होता है जिसके parents अभी जिंदा नहीं है, जिसका parents का कोई whereabouts नहीं है, जिसके parents गुजर गए. Those kind of children are known as orphan child. What are abandoned child? Abandoned child are those children जिनके parents ने उनको छोड़ दिया. They don't want to take care of the child. They are deserted by the parents or by the adoptive parents or by anybody. They are just deserted. उनका बच्चे से कोई भी ताल्लुक नहीं है. This kind of children are known as abandoned child. Then third type of children are called as surrendered child. In this cases, surrendered child is the child जिसमें माता पिता खुद अपने will से, by their own will, they give the child for adoption. They give the child for adoption. That is when that child is called as a surrendered child. So this orphan child, abandoned child, and surrendered child, ये हम देते किनके पास देते? Where do we give this child? We do not give this child on WhatsApp messages or we do not give this child on phone calls कि ये बच्चे का parents नहीं है, ये बच्चे को abandon किया है, अभी तुम इसको रख लो या इसके relative को दे दो. No, that's not how it happens.
The children in need of care and protection that have to be legally declared free for adoption by the Child Welfare Committee. Today in our session, we have Vijay Doifode ji, who is the chairperson of the Child Welfare Committee. He would explain us in details how do they declare a child legally free for adoption. So this should be very clear within everybody that orphan, abandoned, and surrendered child are children in need of care and protection, and they are declared to be legally free for adoption only by the Child Welfare Committee and the adoption agencies. Nobody else is involved in this process. We as a common man, we are not involved in this process. If we are receiving any kind of text and messages with respect to this, we should be contacting the district police officers immediately, or we should be contacting child welfare committees, which are stipulated in each and every district in our country. So next question arises is, can we adopt relatives in our country? So yes, we can adopt relatives child in our country. Yes, we can adopt relatives child in our country, that is under the juvenile justice care. But there has to be a valid so relatives. Maybe they have given different relatives also who can adopt a child. So when we talk about adopting a relative's child, you can either be a paternal aunt or a paternal uncle or a paternal aunt, maternal uncle or a maternal aunt, or grandparents or maternal grandparents or paternal grandparents. Only these people can adopt a child of the relatives under the Juvenile Justice Act. Here, children up till the age of 18 years can be adopted. And the power of adoption has been, under this act, has been vested with the CARA. So CARA is the Central Adoption Resource Authority, who has been vested with the powers of adoption in our country. So it is a statutory and autonomous body under the Ministry of Women and Child, Government of India. It is a nodal body for adoption, and it functions under the Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in respect of the inter-country adoptions. So powers are given under the JJ Act. It promotes in-country adoptions and inter-country adoptions as well. So what are in-country and inter-country adoptions? In-country adoptions जो होते हैं, जो happens within the territory of India, those are in-country adoptions. Inter-country adoptions are those adoptions wherein some foreign OCI card holders, NRIs or foreigners can adopt a child from our country. This can only happen under Juvenile Justice Act. Inter-country adoptions cannot happen in the Hindu Adoption and Maintenance Act. So CARA has given guidelines, specified guidelines called as Adoption Regulations Guidelines of 2017, which speaks about procedure for inter-country adoption, procedure for in-country adoptions, procedure for adopting an orphan, abandoned or surrendered child, procedure for adopting relatives child. These all things are specified in the Adoption Regulations of 2017. So how do we adopt a child under the, if we want to adopt a child under the Juvenile Justice Act 2015, how do we do that? So parents who want to adopt a child are known as the prospective adoptive parents. We call them as PAPs. They must be financially stable. They must be physically sound. They must be mentally alert, and they must be highly motivated. In these cases, consent of both these spouses are needed. Yes, I'm just completing. Consent of both these spouses are needed in this. A single and divorced person can also apply. There has to be 2 years of stable marital relationship when we are adopting a child under the Juvenile Justice Act. Also, age gap between the prospective adoptive parents and the child should not be less than 25 years. As we have seen in Hindu Adoption and Maintenance Act, we had 21 years as the gap between the parents and the child, but in this case, the gap should be 25 years. And age criteria has been relaxed for the in-relative adoption. So PAPs having 3 or more children cannot adopt a child. So we'll just go brush up through the procedure for the adoption for the prospective adoptive parents. The PAPs interested should apply through carings. They may apply for the desired state. A registration number is given for reviewing a process. They may select a specialized agency or a house study report has been, they can choose for the specialized adoption agencies who then do the house study report within 30 days. This house study report that they do of the prospective adoptive parents has to be submitted to the CARA. Then 3 children profiles are referred. Once they refer you, you can select one of them. You are being called for counseling. There is a meeting arranged. There may be a pre-foster care. During this time, these specialized adoption agency have to file application with the court. A certified copy is released, and this would lead to a valid adoption in our country. So this is how adoption takes place in the Juvenile Justice Act, and the process that takes place in the Hindu Adoption Act only for the Hindus is completely different from what it takes place in the Juvenile Justice Act. There are certain issues concerning
adoption in our country. One is the issue regarding plea for adoption of the orphan children surfacing over the internet, which is illegal. The second issue is there's less awareness amongst the regarding the authorities in case of adoption. Why we all are receiving these texts and messages of child not being adopted or child to be adopted, because people are not aware that there's an authority in place wherein if we have an orphan child, उसके लिए एक अलग से procedure है. So that's how legal less awareness amongst the authorities in case of adoption. Like people who have adopted, they feel that it's a very cumbersome and a long process. It takes time because you have to go to the specialized agencies, then you have to go to the CARA authorities, you have to get all the details from the court. So it's a very long process. As it is, the parents are mentally very disturbed because they may be facing some problems because that is why they're going for adoption, right? So that they feel that it's a very long and cumbersome, which has to be taken into consideration. Second is adoptions done under HAMA are not valid for inter-country adoptions. So if there's a parents who are staying abroad, like they are Hindu and they want to adopt a child from India, they cannot adopt the child from India under the HAMA. They have to go to the CARA because CARA gives an NOC. Only then the passport authorities give a green signal, and then the child can be taken back to foreign country. So these are the two aspects of what I had to cover today with respect to adoption in India. So the HAMA Act and the Juvenile Justice Act, which is for all the religions. HAMA Act is only specifically for Hindus. So thank you so much for giving me this opportunity to speak. And over to you, Pranavji, for the next topic. Thank you, Advocate Sejal Pawar. Now, would I request Advocate Victoria Gauriji to share with us their inputs on suggestions with respect to the adoption process in India. Thank you. Morning, everyone. Most respected Vijaya Rahatkarji, Chairperson of Anandi Foundation, Shri Priyank ji, Advocate Sejal, Shri Vijay ji, Ms. Lata, and all the others who are participating in this seminar. I extend my warm greetings to you all. At the first instance, I would like to extend my hearty gratitude for including me in this noble seminar, because this is the time of the hour, I feel. I have always observed Srimati Vijaya Rahatkarji organizing such seminars and also various programs to enlighten and empower women especially. And this program is also a milestone and will be a milestone program of her organization. And regarding the suggestions with respect to the adoption process in India, the process of adoption is well covered by Advocate Sejal. And as explained by Advocate Sejal, the adoption process of Hindus are covered by the HAMA Act, and also as far as the adoption by the people who are other than Hindus, Buddhists, Jains, it has to be naturally, they have to go to the Juvenile Justice Act 2015. Why? There is no uniformity. The absence of the uniformity in the process of adoption by the citizens of India only because they belong to various religions has made this process a little complex and little confusing for the people to understand the process of adoption in India. India being a land of multifarious religions and various kinds of living systems, we had been very accommodative of all the systems within our country, but yet adoption being a very personal matter of importance in the personal lives of the individual, both the parents and also the child involved, more care has to be given to this particular subject. And it is high time that more awareness programs like this
are being organized in a national level and also in a state level. And the Constitution of India has always provided for the safety and security of our children, and the survival, development and protection of children fall either in the concurrent list or in the state list of the 7th schedule of the Constitution of India. But however, the implementation of the schemes, including those of the central government, is carried out only by the states. So there is no uniformity of the implementation of the various schemes across the country, and it is state specific from state after state. But interestingly, Times of India has reported that there are interstate adoptions and, as rightly pointed by Advocate Sejal, inter-country adoptions as well. So India is a country, it is a federal state, it is a federal as well as unitary state where all of us are Indians. But at the same time, we also belong to the state where we live. So it is high time that this particular aspect as to the survival, development and protection of our children has to be kept in the concurrent list. That has to be that is a thought process, and it is a vision, long-standing vision, which has to be appreciated by the lawmakers of our country. It is high time that this subject has to be kept in the concurrent list of the Constitution of India, so that a holistic plan could be conceived by the nodal agency CARA in association with the respective states. This is the prime suggestion which I would like to submit before this forum, this respectable forum today, that the coordination in the adoption process between the national nodal agency CARA and the respective states are lagging far behind, and it is high time that a holistic, centralized scheme has to be conceived at the earliest with immediate effect. Because the Times of India has reported that during the period 2018-19, India has reported 3,374 adoptions in country adoptions, while Maharashtra has topped with 695 adoptions, and Karnataka stood at second with 237 adoptions. Besides, there were 253 intercountry adoptions, of which Karnataka state accounted for 44 of them. So Karnataka has seen 252 adoptions, including 20 intercountry adoptions, and Maharashtra and Karnataka stands first and second in the process of adoption, and there are 2,919 parents waiting to take home child. But I would like to register that it is not only in the case of Karnataka. In every state after the state, the list of parents who are waiting to take home child is very long. Even in Tamil Nadu, even in Kerala, parents, they actually want to adopt children, but they really do not know whom to approach and how to take forward the adoption process, and the resource persons who could guide them in the process of adoption in India, in whatever be the state, irrespective of the state which they belong to, there are very little period, a handful of specialists or resource persons who are capable of giving appropriate and prompt guidance to the parents who are in need of adoption. And so it is high time that CARA has to play a very vital role, where being the nodal body, it is very much important that CARA shall maintain an online portal with the details. We know that it cannot be explicitly stated, but the availability of the children, state level availability of the children for adoption as categorized by Advocate Sejal as orphan child, abandoned child and surrendered child, whoever be it, the availability of the children, if they are made available in an online portal maintained by CARA in connectivity to the respective states, that will be of great use.
because in each and every state, the authorized adoption centers, we in Tamil Nadu, we call the centers as adoption centers. The adoption centers, the authorized adoption centers are very few. A handful of organizations are organized or authorized for the purpose of identifying the children and for the purpose of involving themselves in giving the children in adoption. They are working in coordination with the child welfare committees of the state as well. But the state has not come out clear as far as the state of Tamil Nadu is concerned. There is no clear information or data available for those parents in need of children about the availability of the children. They run between pillar and post to the police stations, to the orphanages where they do not really give children in adoption, and they approach advocates to know the availability of the children. How do the practicing advocates know the availability of the children? How do any kind of orphanage which may be running in district after the district know the availability of the children who can be given in adoption? So there is no system or mechanism. There is no appropriate mechanism which would provide with the information with respect to the availability of the children to the prospective parents who are intending to adopt with the data. So without having any scope of knowledge as to whom to approach and how to adopt, there are thousands of parents across India who are in queue properly before the respective adoption centers, and there are several lakhs of parents who do not know the process of adoption in India. So the prime suggestion is that we have to conceive a more holistic propagation program, a propagation drive, like as this our Anandi Foundation has actually now conceived this program. Even this is a national program because I'm talking from Kanyakumari and Taiji is in Maharashtra, I hope, and Advocate Shejal must be from Delhi. And so now it is an interconnected in a national level program, and this has to be done with larger mass to reach larger people, and such awareness programs will create a kind of a shift in the knowledge as to the process of adoption in India. And so my prime suggestion is that the lawmakers of the country should divert that thought process and should conceive conceive necessary steps to keep this subject of adoption process, especially the survival, development and protection of children in the concurrent list, so that a proper coordination between the center and state could be done holistically, thereby facilitating the nodal agency CARA and the respective state agencies to maintain a proper data of the available children, and they can holistically conceive an interstate programs, awareness programs like this in a larger level to reach larger population, enlightening our population, because India in this pandemic situation, our country is today toiling in fear, and we are suffering, and we have lost a lot of people, and the international in the international arena several kind of criticism has arisen, but they conveniently forget the population of our motherland. The pandemic has to be understood from the point of view of our population with respect to the other country. Similarly, awareness has to be creating awareness should also be understood from the point of view of our population. Larger being the population of our motherland, it is the responsibility of social persons, social leaders to conceive more programs like this in collaboration with the various nodal agencies. And I think my time is up. Thank you. Thank you for this opportunity. Thank you, one and all. Ma'am, thank you. Thank you. The next presenter is Sri Vijay Doifode.
And you just mentioned this is truly an India pan-India event because we have a representation from Manipur and Sikkim also in this session. आज के सेशन में जो है वो अंडरस्टैंडिंग अबाउट हम लोग पहला अबेंडन और सरेंडर की प्रोसेस के बारे में जानेंगे और कौन कैसे सरेंडर कर सकता है, अबेंडन की प्रोसेस क्या होती है वो देख लेंगे और उसका फॉलोअप किस तरह से किया जाता है। ये 3-4 बातों पर हम लोग शुरुआत में आज थोड़ा सा आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सरेंडर की प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि पहले वाले दोनों टीम ने काफ़ी जेजे एक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सभी को दिया हुआ है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट प्रोसेस के ऊपर जाएंगे तो कम समय में मैक्सिमम हम लोग इनपुट दे सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला हम लोग जान रहे हैं कि सरेंडर कौन कर सकता है। इसमें हमें देखना है कि सरेंडर करने वाली व्यक्ति कौन हो सकती है। एक वो व्यक्ति हो सकती है जो अनमैरिड है, जिसकी शादी नहीं हुई है, वैसी महिला अपने बच्चे को सरेंडर कर सकती है। जो मैरिड कपल है, ऐसे कपल भी बच्चे को सरेंडर कर सकते हैं। कोई विधवा या विधुर है, ये दोनों में से एक अगर कोई है ऐसे तो वो भी अपना बच्चा सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने पार्टनर्स के डेथ सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पेरेंट्स या गार्डियंस जो माइनर बच्चे हैं उनके बच्चे को सरेंडर करने के लिए पेरेंट्स और गार्डियन एलिजिबल है, वो बच्चा सरेंडर कर सकते हैं। अगर कोई मैरिड पर्सन है और वो उनमें से कोई एक बंदा अनट्रेसेबल है, ऐसे वक्त में अगर सिंगल मदर या फादर बच्चा सरेंडर करना चाहती है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोबारा अबेंडन की प्रोसेस हमें करनी पड़ती है। और कोई गार्डियंस भी जो रिलेटिव है, गार्डियंस है, वो भी बच्चा सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों कैटेगरी के लिए जो रेड में मेंशन की गई 2 कैटेगरी है, इसीलिए अबेंडन की प्रोसेस करना अनिवार्य होता है। सरेंडर की प्रोसेस में जो जेजे एक्ट सेक्शन 35 और आर्टिकल 7 के तहत जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब बच्चा सरेंडर किया जाता है, जो पिछली कैटेगरी में से जो भी लोग हैं अगर वो बच्चा सरेंडर करने आते हैं तो उनके पास से ये जो क्या प्रोसेस होती है। पहली बार सरेंडर करने वाले व्यक्ति की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है तो उनकी एकदम कंपलसरी है कि उनका काउंसलिंग होना ज़रूरी है कि वो उस प्रोसेस के लिए रेडी है या नहीं, ये हमें श्योर करना है। और उसी के बाद में ये जब अप्रोच करेंगे तो इस सारी प्रोसेस की इंक्वायरी प्रॉपर होना ज़रूरी है। और अगर ये बच्चा सरेंडर हो गया तो इसीलिए उन्हें रिकन्सिडर के लिए 60 डेज का पीरियड दिया जाता है। 60 दिन के अंदर अगर वो चाहते हैं कि इस बच्चे की कस्टडी वापस लेना है तो वो कमेटी के पास में सरेंडर के 60 दिन के अंदर के पीरियड में वो CWC में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे उन्हें उनका निर्णय दोबारा बदलने की एक संधि होती है, चांस होता है, वो दिया जाता है। हर जो व्यक्ति सरेंडर कर रही है उसका सारे प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत है। आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर ID हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, रेशन कार्ड हो, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर उनके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए उनके पास अवेलेबल है तो वो भी होना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ बच्चा जिस अस्पताल में उसने जन्म लिया है उस अस्पताल से डिस्चार्ज का होना भी बहुत ज़रूरी है। सरेंडर के प्रोसेस के अंदर सबसे पहले होता है कि मैं CWC के पास वो आकर एक एप्लीकेशन देकर, जो फॉर्म 23 में महाराष्ट्र रूल्स में हमारे पास 23 रूल्स में है, बाकी सभी रूल्स में फॉर्म दिए हुए हैं, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उस फॉर्मेट में होगा और जो सरेंडर करने वाले व्यक्ति है उस फॉर्म को लेकर आएगा। उसी के साथ साथ वो एग्जीक्यूटिव डीड ऑफ सरेंडर का एक पेपर होगा जो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बनाया होगा, वो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने दिया जाएगा। ये एक प्रोसेस है। और इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ बच्चा और सरेंडर करने वाले पेरेंट्स का साथ में होने वाले फ़ोटो, तो इन फ़ोटो की कॉपी होगी, वो भी डीड के ऊपर चिपकाई जाना ज़रूरी है। और फोटोग्राफ उनके अलग से फोटोग्राफ भी ज़रूरी होते हैं, जिसके ऊपर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी रिकॉर्ड के लिए सिग्नेचर करती है। और इस सारे प्रोसेस के बाद में सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके एक एनवेलप के अंदर सील रखे जाते हैं और सील करने के बाद उसे सेव किया जाता है।
और उसी के बाद भी फिर बच्चे को किसी भी साथ के पास इंस्टीट्यूशन में रखने की ऑर्डर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा की जाती है। अगर यहाँ पर एक ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर कोई भी बच्चा अनमेरिड मदर के पास से आता है तो उसकी डिग्निटी और राइट्स के ऊपर किसी भी तरह का आघात ना हो, इसके लिए काफ़ी ध्यानपूर्वक मतलब सोच समझ कर काम करना ज़रूरी होता है। और कोशिश होती है कि ये सारी प्रोसेस है इन कैमरा होनी चाहिए, लेकिन काफ़ी CWC के पास में ये सारी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हो जाए तो वो काफ़ी बढ़िया होगा। और इन सारे केस में जब बच्चे सरेंडर किए जाते हैं तो सरेंडर की प्रोसेस में सरेंडर करने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह का समन या नोटिस इशू करने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस में उन्हें वापस डिस्टर्ब ना किया जाए, वो भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है। और ये सारी प्रोसेस है पूरी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, इसीलिए जब डॉक्यूमेंट्स भी सभी के पास से सरेंडर के हमारे पास आते हैं तो इसे एनवलप में रख के पूरा सील करके उसी तरह से वो कारा के पास फॉरवर्ड किया जाता है, क्योंकि इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन ना किसी इंस्टीट्यूशन के लोग लीक कर पाए, ना कोई अदर व्यक्ति उसे बाहर ला पाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। और इसके बारे में किसी को भी जानकारी ना हो, इसलिए बाकी के SIR, SBR और ये सारे प्रोसेस को यहाँ पर सरेंडर प्रोसेस में हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी कहीं पर भी ब्रेक ना हो जाए, इसका ध्यान रखा जाता है। और जब ये सारा सरेंडर की प्रोसेस हो जाती है उसके 60 डेज के बाद में सोशल वर्कर के द्वारा एक रिपोर्ट आता है, और रिपोर्ट आने के बाद में उस बच्चे को फिट फॉर एडॉप्शन डिक्लेयर किया जाता है। ये हुई सरेंडर की प्रोसेस। उसी के साथ साथ दूसरी एक कैटेगरी हमारे पास जो आती है वो अबेंडन चाइल्ड होते हैं। जो अबेंडन चाइल्ड यानी जो बच्चे गुमशुदा बच्चे बाहर मिले हैं, तो ये बच्चे कौन ला सकता है? तो ये बच्चे पुलिस ला सकती है, NGO ला सकता है, या कोई भी सिटीजन उसे मिलता है तो वो डायरेक्ट भी हमारे पास ला सकती है, या वो पुलिस के ज़रिए भी ला सकती है। अगर ये बच्चा पहली बार अगर हमारे आता है तो इसमें एक बात बहुत ज़रूरी होती है कि सारे ये अबेंडन बच्चे जो फाउंड होते हैं, मिलते हैं, इनके बारे में FIR होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके फैमिली को ट्रेस करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, इसलिए इसमें FIR कंपल्सरी होता है। और जब ये बच्चे मिलते हैं तो 24 आवर्स के अंदर CWC के सामने आना अनिवार्य है, इसमें रखा गया है। ये कई बार लोगों को जानकारी होती नहीं है और वो अपने घर में रख देते, तो वो भी एक अपराध है कि वो बड़े सिंपैथी से भी अपने घर पे रखा है, तो वो कानून से स्वीकार्य नहीं होता है। इसलिए कोशिश होगी कि वो 24 आवर्स के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने आएगा। अगर कई बार ऐसे होता है कि अगर बच्चा मिला है तो वो CWC के सामने लाने के लिए विलम्ब हो सकता है, वो कौन से कारणों से हो सकता है, तो और वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो किसी बच्चे को अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो उसे हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट प्रायोरिटी होती है, वो पहले ट्रीटमेंट पूरी करेंगे और वो ट्रीटमेंट के बाद में उसे अगर हॉस्पिटल में ज़रूरत है तो एडमिट किया जाएगा वहीं पर, और वो वहाँ का जो प्रोसीजर है वो पूरी होने के बाद में उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ऐसे केस में वो 24 आवर्स के से भी ज़्यादा समय तक अगर बच्चा कमेटी के पास नहीं आता है तो एक्सेप्टेबल होता है। और ये बच्चा जब अबेंडन बच्चा सामने लाया जाता है तो इसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से ऑर्डर से किसी भी एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में जो सा के पास उसका एडमिशन किया जाता है। जब ये बच्चा सा में अभी एडमिट हुआ है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस से FIR हो गई है और पुलिस ने लाया हुआ है, तो ऐसे समय में बच्चे के अगर एज के बारे में कोई भी हमारे पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते, तो ऐसे समय में कोशिश की जाती है कि बच्चे का एज वेरिफिकेशन की ऑर्डर की जाती है और वो किसी भी सरकारी अस्पताल से उसका एज वेरीफाई AVM किया जाता है। तो ये एक ज़रूरी प्रोसीजर है इसके अंदर। और उसी के बाद से DCPO के पास बच्चे का फोटो पब्लिकेशन के लिए कहा जाता है। जो बच्चा जिस लैंग्वेज में बात करता है, कोशिश की जाती है कि वो लैंग्वेज कौन से जगह पर बोली जाती है, उस जगह के उस लैंग्वेज के अखबारों में ऐड दी जाती है कि इस तरह का बच्चा मिला हुआ है, कि कम से कम मतलब उसके पेरेंट्स तक वो पहुँचे।
तो वो एक अखबार या दूरदर्शन या कोई भी टेलीविज़न में उसके बारे में पब्लिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों को पता चले कि इस तरह का बच्चा मिला है, अगर उसके कोई पेरेंट्स है तो आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकें। इसी के साथ-साथ होता है कि जैसे आपको बताया कि कौन सी लैंग्वेज में बोलता है, तो उस लैंग्वेज के वहाँ पर बोलना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद में किसी भी जो नज़दीक के शाह है या सीडब्ल्यूसी तय करती है कि कौन से शाह में रखना है, और ये सारा इस सारे प्रोसेस के लिए ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड के लिए भी पोर्टल जो बनाया हुआ है, उस पोर्टल के ऊपर इन सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन एकदम अनिवार्य होता है, क्योंकि वो पोर्टल से काफ़ी लोग अलग-अलग लोगों को, स्टेक होल्डर्स को ट्रैकिंग के लिए एक्सेस है। पुलिस उसे एक्सेस कर सकती है, एनजीओ के लोग कर सकते हैं, और पूरे देश में से कहीं पर भी कोई उस पोर्टल से ट्रैक द मिसिंग का जरिए उसको ट्रेस कर सकते हैं। और उसी के जब बच्चा एडमिट होता है, उसमें जब एज वेरिफिकेशन की ऑर्डर दी जाती है, उसी समय बच्चे के रिपोर्ट के बारे में शाह या किसी भी यूनिट उनके पास एक ऑर्डर दी जाती है कि उसका इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दें, और पुलिस को भी साथ-साथ में रिपोर्ट देने की ऑर्डर दी जाती है कि उस केस में उन्होंने किस तरह की छानबीन की है और बच्चे के पेरेंट्स को ढूँढा है या नहीं। अगर कोई एनजीओ से आता है तो उस एनजीओ के बंदे को भी उसमें साथ-साथ में पुलिस के साथ में अलग तरीके से इन्वॉल्वमेंट दी जाती है। जिस तरह से हम लोगों ने Okay, देखा sir, है कि अगर sorry to चाइल्ड interrupt. लाइन Last से जाता है, 5 minutes, please. हाँ, तो चाइल्ड लाइन से उसे बड़ा नेटवर्क है उनका, तो उनसे भी कई बार हम लोग हेल्प लेते हैं। और ये सारी प्रोसीजर 4 महीने के अंदर पूरी करने की कोशिश होती है, जिसके अंदर फिर अगर ये सारे प्रोसेस करने के बाद में अगर समझ में आता है कि बच्चे के कोई भी पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसे प्री फॉर एडॉप्शन डिक्लेयर किया जाता है। अभी इस सारी प्रक्रिया को देखते हुए मतलब एक ध्यान में रखना कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जब काम करेगी तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का रोल काउंसलिंग करना नहीं होगा, वो काउंसलिंग के लिए चूँकि कोर्ट के पास ऑर्डर दे सकती है, और पीडब्ल्यूसी उसे हर तरह की सपोर्ट देने की कोशिश करेगी। जैसे उसे और उसके कहीं पर भी यहाँ पर जजमेंटल होना ज़रूरी नहीं है, उसके रिलीजन को लेकर या उसके लैंग्वेज को लेकर जजमेंटल एटीट्यूड ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। और बच्चे को उसके बर्थ पेरेंट्स के पास वो बच्चा जाए, इसके लिए मैक्सिमम कोशिश होती है। शायद वो 4 महीने का पीरियड थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाए, तो भी उसे हम लोग एक्सटेंड करते हैं कई कई बार। ऐसे भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि 9-9 महीने के बाद में बच्चे के बर्थ पेरेंट्स मिले हुए हैं। जहाँ पर थोड़ा-सा ग्रे एरिया दिखता है, हम लोग वहाँ पर थोड़ा गलत करते हैं, कि क्योंकि बच्चे की प्रायोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके बर्थ पेरेंट्स के साथ वो रहे। ओके। और अभी अभी का एक हेलो। सर अजून काय आहे प्रेझेंटेशन? हाँ, नहीं आया जल्दी सांगता अभी इसके साथ भी अभी हम लोगों ने देखा पैंडेमिक के दौर में हम लोगों ने एक एक्सपीरियंस किया कि जो पहली वेव आई थी, उस समय बहुत बड़े बड़े पैमाने पर लड़के जो अनमेड मदर थी, उनका नंबर काफ़ी था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से एक हुआ था कि इन सारी जो पोक्सो विक्टिम और अनमेड मदर थे, उनको अबॉर्शन करने के लिए कहीं पर भी प्रावधान नहीं मिला। सारे अस्पताल में कोविड के लिए ऑक्यूपाई किया गया था। ऐसे में उनका अबॉर्शन की प्रोसेस काफ़ी डिले हुई थी, और अबॉर्शन ना हो पाने की वजह से वो डायरेक्ट अस्पताल में डिलीवरी के लिए आए थे। और अस्पताल के लोगों ने अभी मुंबई में हम लोगों ने ऐसे किया है, जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, बीएमसी के हॉस्पिटल हैं, उनके साथ में मीटिंग लेकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का रोल और इस तरह के जो अबैंडन और पोक्सो विक्टिम्स है, उसे कैसे ट्रेस आउट करना है, उसके लिए उन्हें जानकारी दी हुई है। और इसलिए काफ़ी सारे अस्पताल से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इस तरह के केसेस के बारे में रेगुलरली कॉन्टैक्ट होता है। तो पेंडेमिक के दौर में हमें पिछले फर्स्ट हम लोग के वेव के वक्त देखा था, काफ़ी सारे इस तरह की मदर्स ट्रेस आउट हुई थी, और ये बच्चे आना शुरू हुआ था, और सारे बच्चे कमेटी के पास में आके सरेंडर प्रोसेस में पूरे होकर वो अभी एडॉप्शन के लिए प्री फॉर एडॉप्शन भी होने के यहाँ पर आए हैं। कुछ बच्चे एडॉप्ट भी हो गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात हुई है, जो हम लोगों ने अवेयरनेस किया था उसका ही इफेक्ट पड़ा। और अभी के समय में थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि काफ़ी जो हम लोग देख रहे हैं कि एडॉप्शन के बारे में कॉल्स आ रहे हैं। हाँ, तो इसमें कुछ अस्पताल के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, इस तरह से दिखाई दे रहा है।
कम्युनिटी के अंदर से भी लोग डायरेक्टली बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं। और ये जो सारा नेटवर्क है जो सिस्टम के अलावा बाहर चल रहा है, वो एक सबसे बड़ी अभी के पैंडेमिक में इशू है, उसे ट्रेस आउट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं जो इस तरह के इलीगल काम में लगे हुए हैं। और इसीलिए अभी मुंबई में एक टास्क फोर्स तैयार किया गया है जो पैंडेमिक में जितने भी प्रताड़ित बच्चे हैं उनको किस तरह से ट्रेस किया जाए। इसमें कलेक्टर हमारे चेयरपर्सन है और फिर दोनों CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, कलेक्टर, BMC के ऑफिसर, DWCD ऑफिसर, DCQ यूनिट के लोग, इन्होंने सबने मिलकर एक विजय टास्क सर, फोर्स लास्ट 2 बनाया। minutes. हाँ, ये टास्क फोर्स बनाया। टास्क फोर्स इन पैंडेमिक के बच्चों को ट्रेस करने के लिए काफ़ी हेल्प कर रहा है। और इसके बारे में सारे कोविड केयर सेंटर्स के अंदर हॉस्पिटल्स में ये टास्क फोर्स की डिटेल्स दी गई है, किसे कांटेक्ट करना है और किस तरह से काम करें। Thank you, Doifur sir. यस I would request the next speaker, Ms. Arish Ladha. She's an ex-member of Madhya Pradesh State Commission for Protection of Child Rights, and to inform us about the way forward with respect to the adoption during the present pandemic. Ladha ma'am, नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज? मैं आपको प्रेजेंटर भी बना दिया, we can all see you. आपकी आवाज आ रही है। आज राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और आनंदी फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस वेबिनार में उपस्थित सभी हमारे अतिथि श्रीमती विजया राहतकर जी, श्री प्रियंका कानूंगो जी, श्रीमती विक्टोरिया मैडम, गौरी मैडम, श्री विजय टाइफोडी जी, सभी का मैं, और सैजल मैडम, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि आज मुझे आपने अपनी बात रखने का यहाँ पर मौका दिया। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है जो आज की आवश्यकता के अनुसार है, और बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है जो मैं पिछले 1 साल से इस चीज़ को महसूस कर रही थी। तो मैं इसका दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी विजया ताई को कि उन्होंने इस पर विचार किया, और मुझे लगता है कि इसके बाद हम बहुत अच्छा कुछ निकल कर आएगा जो अभी के जो पैंडेमिक टाइम में जिसकी आवश्यकता है उस पर काम हो पाएगा। मेरा जो विषय है कि गोद लेने की प्रक्रिया जो एक आम जनरल लोगों के बीच में होनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए, इसके विषय में मैं बात, हालांकि हमारे पूर्व वक्ता बहुत अच्छे से इस बात को रख चुके हैं, एक रिपीटेशन ही होगा, लेकिन फिर भी हम किन बातों को एक नक्शल में अगर देखें तो क्या होना चाहिए कि जैसा कि आपने देखा कि अफवाहें बहुत हुई सोशल मीडिया पे भी बच्चों को लेकर भी, कि एडॉप्शन की बात हो रही थी, कहाँ से लिया जाएगा। मुझे सामने भी अभी बताया कि कुछ लोग डायरेक्ट भी ले रहे थे। तो अगर इस समय पर लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर किसी बच्चे को अगर कोरोना के टाइम में किसी माता पिता को खो दिया है उस बच्चे ने, तो क्या करें। तो सीधी बात है कि सबसे पहले उस बच्चे के जिस क्षेत्र में उसके माता पिता रहते हैं, उनका घर है, उनके नजदीक के पुलिस स्टेशन पे उनको खबर करनी चाहिए। अगर वो संभव नहीं है वहां जाकर, तो चाइल्ड लाइन है, चाइल्ड लाइन का नंबर है 1098, उस पर हम खबर कर सकते हैं इस तरह की स्थिति है। और इसके अलावा अगर हमारा संपर्क है जो बाल कल्याण समिति है, तो वहां पर भी सूचित किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर प्रॉपर जगह पे सूचना मिल जाती है, तो जो बाल कल्याण समिति है वो तत्काल उसके रहने की, उसकी संरक्षण की व्यवस्था करेगी जो उस समय उसको बहुत आवश्यक होगा। और JJ एक्ट के तहत अगर कहीं उसको गोद लेने की प्रक्रिया के लिए कोई आ रहे हैं, तो उसके लिए भी जो प्रोसीजर दिया है उसके बारे में वो अवगत करेगी। अगर किसी को बच्चा अडॉप्ट करना है तो क्या करें, इसके लिए जो कारा का एक वैधानिक तरीका है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। अगर देखा जाए तो एक जो एजुकेटेड फैमिलीज हैं या जिन लोगों को, जो शहरी लोग हैं कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वो लोग इस चीज़ से तो बहुत अच्छे से परिचित हैं। लेकिन आम जन, क्योंकि पैंडेमिक टाइम चल रहा है और ये समस्या न केवल शहरों में बल्कि गांव देहातों में, ऐसी जगहों पे जहां पर लोग इन सब बातों को जानते ही नहीं है, तो ऐसे में वो
कहाँ सूचित करें और कैसे उसका पालन करें। तो ये सारी जानकारियां उन तक पहुंचाना देना जरूरी है, और उनको ये बताना है कि उसके माध्यम से, कारा के माध्यम से आप ये एडॉप्शन का प्रोसीजर कर सकते हो। और विक्टोरिया मैडम ने बहुत अच्छे से एक बात कही जो मैं खुद सोच रही थी कि अपनी बात रखूंगी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को व्यक्त किया कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। पूरे सिस्टम में कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। अगर CWC भी देखा जाए और अगर डिपार्टमेंट देखा जाए, कारा का देखा जाए, तो कहीं ना कहीं उनमें इस चीज की कमी है कि अगर उस चीज को अगर सही से समय से अगर हम लिपिबद्ध कर ले, तो मुझे लगता है कि एडॉप्शन के प्रोसीजर को बहुत आसान किया जा सकता है। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी कि अगर इस तरह से मान लीजिए कोई ले भी लेता है, जैसे विजय साहब बोल रहे थे, तो ये हमें मालूम है कि इलीगल है, लेकिन उनको नहीं पता। वो सोचते हैं कि हमने चुपके से ले लिया बच्चा तो काम खत्म हो गया। लेकिन जो प्रोसीजर में भी चल रहे हैं, मैं उनकी भी मानसिकता का यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि एक लड़की ने MNC में काम करती है, तो आप समझ सकते हैं पढ़ी लिखी है। उसने कारा में अप्लाई किया बच्चा लेने के लिए, और फिर उसको कहीं से मेरे बारे में पता चला, तो उसने मुझसे जानना चाहा कि हम बच्चे को जल्दी से जल्दी गोद कैसे ले सकते हैं, तो मुझे मेरी मदद करो इस काम में। उसने मुझसे ये कहा। तो मैंने फिर उसको प्यार से यही जवाब दिया कि बेटा, अगर आपने खुद भी जन्म दिया होता बच्चे को, तो भी 9 महीने तो इंतजार करती ना। तो आप यही समझ लो कि आप 9 महीने इंतजार कर रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिनको बहुत ज्यादा आवश्यकता लगती है, जिनको बच्चे की चाह है, वो शायद इतना वेट नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीजों पे मुझे लगता है इस प्रोसीजर में पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ बातें जो इस पैंडेमिक टाइम में जो मुझे मेरे संज्ञान में आई हैं, हमने पिछले लगभग साल भर में 5 वेबिनार ऑलरेडी इन्हीं विषयों पर किए हैं। मैं भी एक एडुजी लाइफ करके एक बच्चियों के लिए एक संस्थान मैंने अभी शुरू किया है, जिसपे मैं काम कर रही हूँ। तो उनके माध्यम से भी हमने कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम, इसी तरह की ऐसी जानकारियां, और बच्चों के जो मानसिक स्तर बहुत ज्यादा भी डिस्टर्ब हुआ है, जिनके माता पिता पीड़ित हुए हैं कोरोना से, तो उनके लिए बहुत सारी सेशन ऐसे रखे थे। तो ये उसमें भी यही बात आई कि ये सारी जो जानकारियां हैं, वो हम एक पढ़े लिखे लोगों तक ही पहुंचा पा रहे हैं, आम लोगों तक की बात नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में आवश्यकता है कि इस काम के लिए CWC को बहुत एक्टिव होने की आवश्यकता होगी, कि वो और कारा दोनों मिलके। मैं यहाँ पे एक चीज का जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि बहुत समय लगा, 1 साल लगभग हमारा कोरोना पीरियड निकल गया, लेकिन फिर भी जो महिला बाल विकास विभाग द्वारा और कारा द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई बच्चों को लेकर, वो अब जागृत हुई जब इस तरह के रूमर शुरू हो गए, ऑनलाइन बच्चों की ट्रैफिकिंग के बाद की बातें जब आने लगी। ट्रैफिकिंग में इसलिए बोलूंगी कि जितने भी मैंने अभी तक जो मैसेज देखे हैं, जो बच्चों को एडॉप्शन के लिए दिए जा रहे हैं, उन पे मैंने खुद कॉल कर करके देखे हैं, और वो सारे जो नंबर होते हैं बंद होते हैं। और मैंने ये पाया कि अगर आप उस पर फोन करते हैं, तो बाद में 1-2 दिन बाद आपके पास कॉल बैक जरूर आती है। तो ये शायद ये है कुछ इस ट्रैफिकिंग का ही एक पार्ट, मुझे लगता है। इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है। तो जागरूक किन के माध्यम से किया जाए, इस पे मेरा ध्यान जो गया कि बच्चों का संपर्क सबसे ज्यादा किन से हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों का संपर्क हो रहा है गाँव के, अगर ऐसी जगहों की बात करें तो आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता और शिक्षक, ये बहुत ज्यादा संपर्क में रहते हैं बच्चों के। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसे रखे जाए, उनको ये गाइडलाइन पहुंचाई जाए, और सार्वजनिक जो जगह जगह है, पब्लिक प्लेस है, जैसे हॉस्पिटल है, वहाँ पे पेरेंट्स अगर एडमिट हैं या जाते हैं, तो ऐसी जगहों पर, बस स्टैंड है, मेडिकल स्टोर है, ऐसी जगहों पर चाइल्ड लाइन वाला नंबर और इस तरह की जानकारी, ऐसे कुछ पैम्पलेट्स वहाँ पर लगाए जाए, क्योंकि ये बहुत तेजी से ये काम लोगों के बीच में हुआ है, जानकारी गई है बच्चों के मामले में। तो उनके लिए उनको जागरूक होना बहुत आवश्यक है। साथ ही अगर संभव हो तो तत्काल, क्योंकि
थोड़ा खोजी स्वभाव है। जब ये सेशन मैडम ने रखा तो मैंने सोचा कि शायद थोड़ा सा फीडबैक भी लूँ और जगहों से भी। तो कुछ बाल कल्याण समिति के चेयरपर्सन को भी मैंने फोन किए और उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि आपको ये गाइडलाइन के बारे में जानकारी है, या आप अभी ऐसे कोरोना से पीड़ित ऐसे कोई बच्चे आपके जिले में आए हैं क्या, ऐसा कोई केस हुआ है क्या? तो उनको नहीं पता था, ना एडवाइजरी पता थी, और उन्होंने ये कहा कि हमारे जिले में अभी तक एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। जबकि मुझे उस जिले का पता था, क्योंकि हम लोग एक हेल्पलाइन ग्रुप भी चला रहे हैं, तो वो रिक्वायरमेंट आती है तो हमें पता है कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, आपके जिले में बहुत सारे केस हैं, आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। तो चूंकि वो नई नई ज्वाइन किया था तो ठीक है, उनको नहीं पता। तो मुझे लगता है कि हमें तत्काल CWC के जो चेयरपर्सन एंड मेंबर और हर जिले में एक जिला बाल अधिकारी होता है, इनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो एक प्रोसीजर पहले था वो था, लेकिन अभी एक इमरजेंसी जैसे हालात हैं, और इन हालातों में हमें क्या करना है। घर के दृश्य भी बदले हुए हैं, लोगों की आवश्यकताएं बदली हुई है, लोग मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से पीड़ित हैं। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है एक ट्रेनिंग आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। एक और बात जो मेरी अभी संज्ञान में आई है कि जो बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं, उसके पीछे उनकी जो प्रॉपर्टी इश्यूज बहुत है। खुशी खुशी नहीं है, कुछ जहाँ जिनके माता पिता दोनों गुजर गए हैं और प्रॉपर्टी उनकी अच्छी है, तो ऐसे लोगों को लेने के लिए बहुत तेजी से उनके रिलेटिव्स आते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा सही हो, सब जगह सही हो, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो गोद लेने का की जो भी प्रक्रिया है, और कुछ चीजें वैसे भी निकल कर आई हैं, अगर संशोधन होता है तो ऐसे आपातकाल में बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया में भी क्या चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, मुझे लगता है इस पे भी बात होनी चाहिए और संशोधन होना चाहिए। तो मैं इतना ही अपनी बात को रखना चाहूंगी, और फिर से एक बार सभी का धन्यवाद अपनी बात रखने के कथा लिए। जी, आपकी बात रखने के लिए। अभी हम लोग लास्ट स्पीकर लास्ट सेशन में जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द लास्ट सेशन ऑफ दिस वेबिनार, एंड बिफोर दैट आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, those who are having a question, they can type their question on chat messages. We will not be taking questions directly on the speaker. जिनको भी कुछ सवाल है वो चैट मैसेज पे भेजें, एंड उसमें भी लिखें कि दिस क्वेश्चन इज टू होम, कौन सी स्पीकर के लिए सवाल है। तो वी विल सिलेक्ट ओनली फ्यू क्वेश्चंस बिकॉज वी हैव टू एंड दिस सेशन ऑन टाइम. Finally, I would request Shri Priyank Kanungoji, Honorable Chairperson of the NCPCR, to conclude this session, and then we'll take a question and answers. मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आदरणीय विजय ताई का, उन्होंने इस कठिन समय में ये प्रेरणा दी, ये पहल की, और आज ये वेबिनार आयोजित हुआ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि इस तरीके की और अवेयरनेस कैंपेन्स की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा इस मामले में सूचनाओं के प्रसारण की आवश्यकता है कि लोगों को सही प्रक्रिया का भान हो सके, सही प्रक्रिया का ज्ञान हो सके, और बच्चों के साथ किसी भी रूप में कोई नाइंसाफी ना हो, अनैतिक काम ना हो। लता जी ने, पवार जी ने, विक्टोरिया जी ने और CWC मुंबई के चेयरपर्सन महोदय ने बहुत अच्छी बातें कानून से जुड़ी हुई हम लोगों को बताई। भारतीय व्यवस्था में कानून, समाज, सरकार, इन सभी ड्यूटी बेयरर्स का और सभी स्टेक होल्डर्स का अलग अलग योगदान है। मैं थोड़ा सा कानून के दायरे के बाहर और हिस्टोरिकल परव्यू में जाकर बात को शुरू करना चाहूँगा, और उसके बाद हम लोग जो समसामयिक समस्या है उसकी तरफ आएंगे। हम में से कई लोगों ने, सभी लोगों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़ी, सुनी होगी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता के माध्यम से सुनी होगी, और हमको ये समझ में आया कि भारतीय व्यवस्था में अडॉप्शन को कानून के द्वारा नियंत्रित करने का काम जो सबसे पहले हुआ वो ब्रिटिशर्स ने किया।
देखिए, भारतीय व्यवस्था में परिवार, समाज, राज्य, शासक, राष्ट्र, ये सभी व्यवस्थाएं प्राचीन काल से बनी हुई थी और सभी के अपने अपने दायरे थे। पारिवारिक व्यवस्थाओं पर समाज का और परिवार का नियंत्रण रहा। सरकारों का काम, राज्य का काम, शासक का काम मदद करना, संबल देना, सहारा देना रहा। लेकिन नियंत्रण का काम जो है वो पारिवारिक व्यवस्था में परिवारों का रहा। इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में एडॉप्शन बहुत ही सामान्य प्रक्रिया रही और उस सामान्य प्रक्रिया को पारिवारिक नियम, सामाजिक मान्यताओं के साथ एक नियम के तहत बांधा गया और उसमें कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत, परेशानियां नहीं आई। हम लोग जब 600 साल, 500 साल, 400 साल, 300 साल पुराने परिवारों के वंश वृक्ष देखते हैं, परिवारों के सिजरे देखते हैं, खानदानों की जो एंट्रीज हिंदू परिवारों में हम देखते हैं कि प्रयागराज में जो पंडा होते हैं उनके पास पूरे के पूरे परिवारों की 300, 400, 500 साल की एंट्रीज हैं। वहाँ भी हम जब देखते हैं पता चलता है कि गोद देने की प्रक्रिया बहुत ही सामान्य ढंग से चलती आई थी और पारिवारिक नियमों और सामाजिक कानूनों के माध्यम से उस पर एक नियंत्रण भी था और शासन का सहयोग भी था। लेकिन राज्य हड़प करने के लिए साम्राज्यवादी नीति के तहत जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बेटे के एडॉप्शन को इलीगल ब्रिटिशर्स ने ठहराया, तब 1857 की क्रांति का भी जन्म इस देश में हुआ। तो ये एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है कि किस प्रकार गोद देने की प्रक्रिया को हमारे यहाँ धार्मिक और सामाजिक मान्यता मिली हुई थी, जिसको समय के साथ गुलामी के दौर में कई बार छिन्न भिन्न किया गया। आज जब आज़ादी के बाद के दौर में हम देखते हैं तो एडॉप्शन की प्रक्रिया को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग रखने के लिए हमको कानूनी नियंत्रण की आवश्यकता है। और जो हम ये भी देख रहे हैं कि कानूनी नियंत्रण के बिना तो संचालन प्रक्रियाओं का आज की तारीख में होना संभव नहीं है। इसलिए चाहे हम हामा की बात बहुत वक्ताओं ने बताई पहले, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में भी वक्ताओं ने बताया पहले, वो होता आया है। हम जब कोविड टाइम्स में बात कर रहे हैं बच्चों के एडॉप्शन की और एक तरीके की क्यूरियोसिटी, एक तरीके का एंग्जाइटी पूरे देश में इस समय लोगों के मन में है कि जो बच्चे अनाथ हो रहे हैं उनका क्या हो रहा है। हर कोई बच्चों को गोद लेना चाहता है, कोई बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठाना चाहता है, कोई बच्चों की पालन पोषण का खर्चा उठाना चाहता है। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको ये समझना होगा, कोविड की महामारी सुनामी या भूकंप की तरीके की आपदा नहीं है। मैं यहाँ बात इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि सुनामी के बाद हमने देखा तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत की कई राज्यों में ऑर्फनेजेस की, चिल्ड्रन होम्स की बाढ़ आई थी। सुनामी में गांव के गांव, घर, परिवार सब कुछ तबाह हो गया। भूकंप में भी इसी तरीके की परिस्थिति बनी। तब बच्चों को शेल्टर्स की, ऑर्फनेजेस में रखने की, इस तरीके की प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। परंतु कोविड की सिचुएशन भिन्न है। कोविड में माता पिता दोनों का भी देहांत हुआ है, तो भी बच्चे के घर, प्रॉपर्टी के राइट्स, अगर माता पिता नौकरी में थे तो उनके कुछ कंपनसेशन, कुछ और बेनिफिट्स, इंश्योरेंस, अगर गरीब से गरीब परिवार भी है और तो भी उनके कुछ मुआवजे, किसी की ज़मीन, किसी का मकान, किसी की दुकान, ये सब राइट्स हम बच्चों के एकदम से वेव आउट नहीं कर सकते, उनको हम खारिज नहीं कर सकते। किसी का कोई बैंक बैलेंस होगा, कुछ ना कुछ तो बच्चों के लिए जो कुछ भी उनके हिस्से में आया है वो उनको मिलना चाहिए। ये एक CWCs के सामने भी चुनौती है। यहाँ पर सक्सेशन सर्टिफिकेट्स बनने होंगे, यहाँ पर आवश्यकता होगी उनके प्रॉपर्टी के पेपर्स बनने की, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा कि DLSA की मदद ली जाए, वकीलों की मदद ली जाए और कानूनी कागज तैयार करवाए। एक बात हम सभी को साफ साफ समझने की ज़रूरत है कि कोविड टाइम में ऑर्फन हुआ हर बच्चा एडॉप्शन में नहीं जा सकता।
मुझे बड़ी जिम्मेदारी समझने की बात है। 15-16 साल का, 17 साल का, 14 साल का बच्चा है, वो अडॉप्शन में दिए जाने की स्थितियों से भिन्न होता है। उनके साथ 12 साल, 13 साल, 10 साल के छोटे भाई बहन होते हैं, वो अडॉप्शन में जाने की स्थिति में नहीं होते। आप सिबलिंग्स को अलग नहीं कर सकते। मैंने पूरे देश में तमिलनाडु से लेकर के नागालैंड तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक सभी जगह एक स्थिति देखी है कि भारतीय परिवार अपने बच्चों को एडॉप्शन में नहीं देते। माता पिता के देहांत के बाद भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मैटरनल अंकल है, पैटर्नल अंकल, ये परिवार है। ये परिवार बच्चों को अपने साथ रखना चाहता है, पालना चाहता है, उनका पोषण करता है, और ये व्यवस्था का एक भाग है। इसको आप यूरोपियन कंट्रीज की तरह नहीं देख सकते। आपको अपनी भारतीय परिप्रेक्ष्य में इन सब बिंदुओं पर विचार करना, और इन सब बिंदुओं पर विचार करने के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ही वो अथॉरिटी है जो ये तय करेगी कि बच्चा अडॉप्शन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर बच्चा अडॉप्शन में जाना होगा तो वो कारा के थ्रू, पेरेंट्स के पोर्टल के थ्रू उस प्रक्रिया में जाएगा। अगर पारिवारिक अडॉप्शन की बात है तो फिर सरकारों के हस्तक्षेप का मामला मिनिमम हो जाता है। लेकिन पारिवारिक अडॉप्शन के मामले में भी ये आयोग का इंटरवेंशन है। आयोग का ये कहना है, हम सभी का ये मानना है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास तो बच्चे को उपस्थित होना ही चाहिए, उसका सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनना ही चाहिए, उसका इंडिविजुअल केयर प्लान उसके अकॉर्डिंग तैयार होना ही चाहिए। हम में से कई लोगों के पास ये प्रस्ताव आते हैं कि भाई हम इस स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, हम उसकी पूरी फीस देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चा जिन सामाजिक परिस्थितियों में जी रहा है, इस परिस्थितियों में उसका जीवन यापन हो रहा है, उसको उससे प्लीज उखाड़िए मत। बच्चे वैसे ही ट्रॉमा में हैं, उनने अपने माँ पिता को खोया है, और ये हम पौधों को भी एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह नहीं लगा सकते। उनका स्कूल, उनका अड़ोस पड़ोस, उनका परिवार, उनका दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार, इन सबसे बच्चों की दुनिया बनी है। हमको एडॉप्शन में बच्चा चाहिए, इसलिए हम उस बच्चे की बाकी की दुनिया भी उजाड़ देंगे क्या? हमको अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना होगा। एक चीज जो लता जी ने भी बताई, विजय ताई ने भी बोली, मैंने भी महसूस की कि बच्चे जिनके माता पिता का देहांत हुआ है, उनकी समस्याओं पे कम से कम ध्यान है। सबसे ज्यादा ध्यान उन लोगों पे है जो माता पिता बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। तो ये महामारी उनके लिए अवसर कदापि नहीं है। जो कारा की प्रोसेस है उसके थ्रू ही बच्चा गोद लिया जाएगा, उसके थ्रू ही बच्चा गोद लिया जाएगा। जो बच्चे कोविड महामारी में अनाथ हुए हैं वो कारा के पोर्टल पे आ जाएंगे। विक्टोरिया जी ने जो बात कही, मैं उससे गहरी असहमति व्यक्त करूंगा, इसलिए क्योंकि कारा का पोर्टल है, कारा की सारी जानकारी सार्वजनिक है, सरकार कुछ भी नहीं छुपाती। सभी बिंदु, सभी जानकारी, सभी बच्चे जो अवेलेबल है, सभी पोर्टल पे अवेलेबल है। जिन भी माता पिता को बच्चा गोद लेना है वो लोग कारा के पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। जो लता जी ने बात कही वो बिल्कुल ठीक कही कि हमको ऐसी बहुत सी सूचनाएं मिल रही हैं, जो माता पिता कारा पे रजिस्टर्ड है वही सबसे ज्यादा टेलीफोन कर रहे हैं, वही सबसे ज्यादा मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं। उनको पेशेंस रखना ही होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं। तो और ये बात बिल्कुल ठीक है, जब बायोलॉजिकली बच्चा पैदा होता है तब भी तो वक्त लगता ही है, तो पेशेंस तो रखना ही होगा। अब रही बात एक कि क्या एडॉप्शन के नियमों में ढील करनी चाहिए, क्या इस समय एडॉप्शन के नियमों को शिथिल करना चाहिए, मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ, और मैं सरकार को भी यही रिकमेंड करेंगे कि इसके नियमों में शिथिलीकरण की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमने सारे के सारे कानूनों के और मैकेनिज्म की मौजूदगी के बावजूद बच्चों की ट्रैफिकिंग के केसेस देखे। मदर टेरेसा संत थी, मदर टेरेसा के नाम से उनके द्वारा स्थापित की गई संस्था चलाने वाले लोग बच्चों की ट्रैफिकिंग करते हुए पकड़ाए। बच्चों की ट्रैफिकिंग के मामले में मिशनरी ऑफ चैरिटी जैसी ख्याति प्राप्त विश्वसनीय संस्था के खिलाफ भी एनसीपीसीआर को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा।
हम संतों के नाम से चलने वाली संस्थाओं में जब इलीगल गतिविधियों को पकड़ते हैं, हम किसी पे विश्वास करने की स्थिति में नहीं है देश में, जबकि बात बच्चों की है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि ना तो इस तरफ बात शुरू की जाए और ना बात की जानी चाहिए। नियम रोबस्ट मैकेनिज्म के तहत है, कानून बहुत सशक्त है, इसमें किसी प्रकार की ढील की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ढील के परिणाम हमने देखे हैं। जब हम रिलीजियस लोगों पे, समाज में सम्मानित लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते तो हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, और नहीं करना चाहिए। अब रही बात कि ये जो प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी। देखिए, जो भी बच्चे ऑर्फन हो रहे हैं, जो भी बच्चों के जो सिंगल पेरेंट भी बन जा रहे हैं, उनकी जानकारियां आयोग जुटा रहा है। राज्य सरकारों के माध्यम से सभी राज्य सरकारें सजगता से काम कर रही हैं। इस देश की कानूनी व्यवस्था ने राज्य सरकारों को, चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज को, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स को, थानों के चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स को कुछ कुछ काम सौंपे, कुछ कुछ मैंडेट दिया है। अब सभी को उनकी कार्य क्षमता पर यकीन करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उनकी मदद करें। मदद के रूप में उन तक सूचनाएं पहुंचाइए। जो व्यक्ति अपॉइंटेड है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में, जो चाइल्ड लाइन में काम कर रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में काम कर रहा है, उनकी विजडम पे भरोसा करना चाहिए। हम अविश्वास क्यों कर रहे हैं? क्या कहीं से ऐसी कोई जानकारी अगर आप लोगों में से किसी को मिलती है कि कहीं मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है, तो आयोग है, सारे देश में स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, हम लोग 19 घंटे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। हमारी माननीय मंत्री रात में 2-2 बजे 3-3 बजे तक सिचुएशंस को मॉनिटर कर रही हैं, काम कर रही हैं लगातार। तो सूचनाएं भेजिए, खबर करिए। ये एक सबसे बड़ा काम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का आज की तारीख में है। दूसरी चीज, जिन लोगों के मन में भाव है, जो बच्चों की मदद करना चाहते हैं, उन सबसे ये आग्रह है कि स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटीज के पास चाइल्ड जुवेनाइल जस्टिस फंड्स है, उनमें मदद करिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 45 है जो स्पॉन्सरशिप की बात करती है। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए, सीधे बच्चों के खाते में पैसा देने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम से बात करिए, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से बात करिए। पर प्लीज ये बिल्कुल मत करिए कि हम इस स्कूल में अब बच्चे को पढ़ाएंगे, हम इस जगह अब बच्चे को रखेंगे। भाई, उनको उनकी रूट से जुदा मत करिए। और एक और चीज जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो परसेप्शन है, जो विक्टोरिया जी कह रही थी, उसके बारे में बहुत एक परसेप्शन है जो क्लियर होना चाहिए, जो बात लोगों को पता चलना चाहिए। लास्ट ईयर इन कोविड टाइम्स में जो हमने देश में 6 राज्यों में चिल्ड्रन होम्स को बोला कि जिन बच्चों के माता पिता हैं, जिनके परिवार हैं, उनको ऑर्फन एजेस में मत रखिए। हम ऑर्फन एजेस में रहने वाले बच्चों की तादाद से ये अनुमान लगाते हैं हमेशा कि ये बच्चे ऑर्फन्स हैं और इनको परिवार नहीं मिल रहा है। ये धारणा गलत है। ऑर्फन एजेस में रहने वाले सभी बच्चे ऑर्फन नहीं हैं। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रहने वाले बच्चों के परिवार हैं। ये आयोग ने जांचा परखा है और पूरी तरीके से सत्य बात है। जब हमने बोला कि बच्चों को वापस परिवार में भेजिए, आप यकीन मानिए देश में कुल 2,56,000 बच्चे चिल्ड्रन होम्स में थे, उनमें से 1,80,000 बच्चे देश के 6 राज्यों में थे। देश में 7,163 चिल्ड्रन होम थे, जिनमें से 4,700 चिल्ड्रन होम दक्षिण भारत के 5 राज्यों में और महाराष्ट्र में थे, और 70% बच्चे इन 6 राज्यों में रह रहे थे। देश के सबसे प्रॉस्पेरस शहरों में से कोयम्बटूर, त्रिवेंद्रम, कोचीन, कहीं 70 चिल्ड्रन होम है, कहीं 100 चिल्ड्रन होम है। ये दीज आर नॉट द सिटीज ऑफ ऑर्फन्स। लेकिन ये ऑर्फन एजेस चलाने का जो बिजनेस है, मैं इसे बिजनेस कहता हूँ, इससे हमको बाहर निकलने की जरूरत है। जब हमने बोला कि बच्चों को माता पिता के पास रीयूनाइट करिए, आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि देश में 1,41,000 बच्चे इन 6 राज्यों में घर भेजे गए, उनके माता पिता के पास वापस भेजे गए। तो ये मान लेना कि ऑर्फन एजेस में रहने वाले सभी बच्चे ऑर्फन है, सिरे से गलत है। मैं इस बात को नकारता हूँ और कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे घरों पे रहें, अपने परिवारों के साथ रहें, और वहां पे हमको उनकी मदद करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा काम है आज की तारीख में।
आप लोगों के कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज ले लीजिए, मैं जवाब देना चाहूंगा। कोई इंटरेक्टिव कोई बात है, कोई इंटरेक्शन करना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। धन्यवाद प्रियंक जी। जैसे हमने पहले कहा था, वी आर टेकिंग क्वेश्चंस ऑन चैट। तो 2 सवाल है क्योंकि अभी समय भी कम है। तो पहला सवाल जो अभी आया है मेरे पास वो सक्षम फाउंडेशन से है, विच इज फ्रॉम नासिक इन महाराष्ट्र। तो उनका कहना है कि हाँ, इफ यू वांट टू स्टार्ट एन ऑर्फनेज, जो आपने कहा कि ऑर्फनेज के बिजनेस से बाहर आने से, बट उनका सवाल है कि इफ दे वांट टू स्टार्ट एन ऑर्फनेज, व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ दे कैन डू इट। बिल्कुल मत खोलिए, आपका ओवरफ्लो है, नासिक में भी ओवरफ्लो है ऑर्फनेजेस का। आप बिल्कुल ऑर्फनेज मत खोलिए। आई एम नॉट इन फेवर टू स्टार्ट अनदर ऑर्फनेज इन नासिक। जो हैं आपके यहाँ जो सरकारी ऑर्फनेज हैं वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नियमों को पूरा नहीं करते, वहाँ कुछ मदद करिए उनकी, जाके आपके पास पैसा है, फंड्स है तो उनकी मदद में खर्च करिए। वहाँ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का भी बता रहा हूँ, नासिक डिस्ट्रिक्ट का भी बता रहा हूँ, जो ऑर्फनेजेस हैं या जो ऑब्जर्वेशन होम है या जो चिल्ड्रन होम है वो नियमों को पूरा नहीं कर रहे हैं, वहाँ जाके कुछ मदद करिए। एक आध कमरा, 2 कमरा वहीं सरकारी जो आपका चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का कॉम्प्लेक्स है नासिक में, वहाँ बनवा दीजिए, ऑर्फनेज मत खोलिए। Thank you, sir. The second question which we have is to Victoria Gauri ma'am, actually, because they have specifically mentioned it. My question is to Madam Gauri ji. Can you give some suggestions to have good information or data exchange between Kara and Sara pertaining to adoption? I also read the question, and the question is from Mr. K. Durairaj, the member of Yes. Tamil Nadu State Commission for Protection of Child Rights. Yes. And this is a very big area which we cannot confine within 2 or 3 minutes. So I can share my phone number here so that Mr. Durairaj can contact me and we can have, because he is from my own home state, and I'll be happy to have a direct conversation with him over phone elaborately. So I'll share my mobile number in this chat box. Of the host. If anyone has a question, I would request them to write in chat, not directly ask the question. Let's follow the protocol, please. अगर कोई सवाल है तो आप चैट में लिख दीजिए, मैं यहाँ से मेंशन करूंगा। 2 ही सवाल आए थे। I have made a request for an intervention. Anil Malhotra, advocate, with the permission of the chair. Sir, we are talking about questions and answers. Intervention as in what, sir? I wanted to add to the views of the honorable chairman because I have 36 years experience as a child rights lawyer, and I wanted to make a humble suggestion, if permitted. I'll ask Priyank, sir, can we have it? Yeah, Mr. Malhotra, please tell me. Sir, Yeah, I am very grateful for your insights and your valuable views. I am one with you that children who have parents and who are siblings should not be uprooted. I have a request. There is an internal procedure of adoptions by Hama. Now, these adoptions are done within the family by a ceremony, and in which Kara's participation is not required if there is a situation where one of the parents is giving and taking, or if there is a guardian. My humble request is that the agencies, particularly state commissions and CWCs, should be allowed to encourage adoptions within the family rather than uprooting the child and putting him to a laborious process of adoptions. I have one more suggestion. I handle a lot of matters as an amicus to assist the court. जहाँ एक बहन या भाई बच्चा गोद लेते हैं, वहाँ भी कारा पासपोर्ट में, NOC में ऑब्जेक्शंस लगाता है। इन ऐसी सिचुएशंस में हेग कन्वेंशन के अंदर उन्हें एक कंफॉर्मिटी सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कारा को जहाँ पर फैमिलीज के विद इन अडॉप्शंस होती हैं, वहाँ अननेसेसरी हर्डल्स कारा को नहीं लगानी चाहिए, ताकि लोगों को हाई कोर्ट जाके रिट में ये डायरेक्शन ना लेनी पड़े जी कारा का NOC जरूरी नहीं है। ये हम्बल रिक्वेस्ट है। मल्होत्रा सर, मेरा यहाँ पे आपसे एक बहुत ही पोलाइट सबमिशन है। प्लीज आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि अननेसेसरी किसी भी अथॉरिटी ने अडॉप्शन की प्रक्रिया में हर्डल डाले या डिले किए, आप प्लीज कमीशन तक कंप्लेंट करिए। हमारा रिस्पांस टाइम बहुत कम है, विद इन अ वीक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पे। सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। 9/4/13 को मैंने NCPCR की रिट फाइल करके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में स्टेट कमीशन बनवाई थी। जब हरियाणा में अपना घर में मैं कोर्ट अपॉइंटेड कमिश्नर था,
तो आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास बहुत पावर्स हैं और आपकी स्टेट कमीशंस को आपको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। आप एनसीपीसीआर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट सर योर स्टेट कमीशंस नीड टू बी अ लिटिल मोर प्रोएक्टिव, बिकॉज उनके पास जो पावर्स हैं वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं आज के पेंडेमिक टाइम्स में। दैट्स द हम्बल सबमिशन। So I think everyone has taken part into the discussion. We are running short of time. We are already over the time now, and we have a very good session, to be honest with all of you. So on behalf of organizers, I thank each one of you who has participated as an NGO, as a CSR activist, as an expert, as a legal advisor, and as one who is representing the government, the institutions. So I think let's conclude this session. And I wish this is just a beginning in resolving this big issue with all the stakeholders together. So thank you all. And we have email IDs of most of them, and we will communicate over that, the coordinates. So thank you. I thank all of you for participation. I have just one submission to make. We have some circulars from the Ministry of Women and Child and CARA authorities as well as to how to curb this situation with respect to orphanage children. So via mail, we'll be sharing you these details also. So there's one public notice and there's one office memorandum by the Secretary of WCD. We'll be sharing you with you all the details which has to be taken into consideration. So we'll share. Thank you all. I'm just ending the meeting. Thank you all for your kind participation and be safe. Take care of yourself. Thank you. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये जरूर कळवा। अशाच ताज्या व्हिडिओंसाठी आमचं फेसबुक पेज फॉलो करा आणि यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।